जो सारा दिन ਚੱਲਿਆ, प्रशासन के नाल मीटिंगां ਚੱਲੀਆਂ, मीटिंग का दौर ਚੱਲਿਆ। उस दे विच सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के कल सेहत भी ज़्यादा डाउन हो गई सी, उस करके कल असी प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, 1 to 1 ही साथियों ने किया। अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस सब तो महत्वपूर्ण जो परसों सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने इच्छा व्यक्त की थी भी आने वाली 4 फरवरी ਨੂੰ 4 जनवरी 2025 ਨੂੰ वो शनिवार वाले दिन एक वड्डा इकट्ठ जिहड़ा होण जा रहा, उस दे विच वो संगत के दर्शन करना चाहुंदे ने। तुहाडे माध्यम राही असी सारे आवाम नूं अपील करते हैं, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हर एक वर्ग नूं खनौरी मोर्चे ते जिथे 38 दिनों तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मरण वरते बैठे हुए हैं, जिंदगी ते मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हां दी इच्छा है। तो जो इस हालात च इंसान हुंदा, उहदी इच्छा जिहड़ी हुंदी, साडी भी फर्ज बनता है उस इच्छा नूं पूरी करिए भी असी वड्डी तो वड्डी गिनती च खनौरी पहुँचीए। ये सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की जिहड़ी इच्छा खनौरी मोर्चे की है। खास करके ਜਿਹੜੇ भी साथी ने आना, चाहे हरियाणे चों वड्डी गिनती च आने आ, ना लगते एरिए चों, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश तो तुसीं देख सकते हो, दक्षिण भारत चों पूरे देश तो लोग आने भी शुरू हो गए हैं। तो साडे साथियों ने वड्डी गिनती च कल नूं 4 जनवरी 2025 ਨੂੰ खनौरी ते पहुँचना है। मैं अपील करूँगा हुण मन्नू कहाड़ जी नूं, वो अगे दी सब तो पहलों मैं करूँगा PR पांडेन जी नूं, वो तमिलनाडु से PR पांडेन जी, वो कम शब्दों में थोड़ी बात रखेंगे। Good morning, all press people, to all India, Tamil Nadu, all farmers are united in supporting the 38 days of the hunger strike of Samyukta Kisan Morcha non-political leader Sri Jagdish Singh Dallewal unto death hunger strike. On December 16th, a Rail Rocko protest was held at 50 places in Tamil Nadu and Puducherry, and 10,000 farmers were arrested. Tamil Nadu Selvi Jodhimani MP has insisted on an urgent decision regarding MSP considering the health condition of Dallewal. They have supported him by holding candles on December 23. We are continuing our protest and hunger strike. Prime Minister Modi is trying to disturb the hunger strike and the unity of the farmers. In this situation, the Supreme Court is giving priority only protecting Dallewal's health. At the same time, the judges have accepted the legitimacy of the demands, including MSP. Therefore, we the Tamil Nadu farmers urge to respect the feelings of Dallewal and insist the court to issue an order to the central government to fulfill the demands of the farmers. Since we are raising our voice for the entire Indian farmers, 100 crores farmers are emotionally waiting for the outcome of the hunger strike. At the same time, they are very much concerned about Dallewal's health. The refusal of the central government to negotiate and fulfill the demands has caused great mental pain to the Tamil Nadu farmers. To urge the central government and support Dallewal's hunger strike, I have come here to ensure of the farmers of Tamil Nadu and Puducherry that we will wholeheartedly support all the protests announced by the committee. Thank you. Mr. Shanta Kumar ji from Karnataka. Good morning, my dear press persons. I am from Karnataka, Loudly. South Indian SKM non-political convener. We are Indian farmers are not beggars. Punjab farmers are carrying out movement similar to freedom movement. The farmers of the entire country are accompanying them.
If Dalaiwala's life is threatened, the farmers of the country should be warned. The will write the death warrant of the central government with the patience of the farmers. The struggle continues in the Karnataka support of Dalaiwala fast for the implementation of the MSP guarantee law. We have gone on 4 days past in Bangalore, Karnataka. We have protested in front of MP's office as a non-partisan of the issued warning. Thousands of farmers have been arrested for the train bandh movement. We have lit candles protest in all villages. On the 31st, we took out torchlight procession in the Karnataka state, all state districts across the country, across the states. A group of farmers from Karnataka have come to the Kannuri border, and thousands of farmers, more farmers are eager to come here. We are warning the government of India, solve the problem immediately. This is our demand. पत्रकार साथियों, कुरबुरु शांता कुमार जी कर्नाटका से और तमिलनाडु से पीआर पांडेन जी ने बताया, जब से 13 फरवरी से ये आंदोलन चल रहा है, तभी से ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक भारत का हिस्सा है। उन्होंने उसी समय से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो अब जब से 26 नवंबर से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पर बैठे हैं, तब से लगातार जो प्रोग्राम चल रहे हैं, तमिलनाडु में 2 बार बहुत बड़े पूरे तमिलनाडु में रेलें रोकी गई। हंगर स्ट्राइक जो सांकेतिक भूख हड़ताल चल रही है, सैकड़ों किसान जो है अलग अलग जगह पे भूख हड़ताल में रहे। तो हर बार चाहे हमने कैंडल मार्च की कॉल दी, चाहे उपायुक्त कार्यालय में जो अनशन की दी, हर एक प्रोग्राम को दक्षिण भारत ने पूरी बाखूबी जिम्मेदारी से निभाया। ये इस आंदोलन को ताकत देने के लिए, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को जो है ताकत देने के लिए हमारे What I said, I will send Lakwinder press note. He is sending to you all. ओके डॉक्टर साहब, ਸਾਥੀਓ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲਟਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, 5 ਰਿਵਰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਗੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਨ 5 ਰਿਵਰ ਸਾਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਆ, ਕੀਟੋਨ ਬੋਡੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਟਿਨਿਨ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, GFR ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਰ ਟੈਸਟ ਉਹ ਵੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲ ਮਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਦਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮਿਹਰ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। देखो, मुझे लगता है कि अभी जो आज की कार्रवाई हुई है उसको अभी स्टडी करना, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से भी उस पर डिस्कशन करके उस पर उसके बाद ही हम कोई बात कह पाएंगे।
लेकिन जहाँ तक सवाल है कोई बयान देने का, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने और अन्य साथियों ने डल्लेवाल साहब की भावना को ही बयां किया है और हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान सत्कार किया गया है और पूरा देश, मुझे लगता है, सारी चीज़ें देख रहा है। देश ने ये भी देखा कि जब सीनियर अधिकारी हमारे पास शाम के समय आए एक दिन और उन्होंने कहा कि आप जो बातें हमारे सामने कह रहे हैं, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कहिए, तो दोनों फोरमों ने उस पर सहमति दी और डल्लेवाल साहब अगले दिन 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से जुड़ने को तैयार भी हो गए। 1 बजे के आसपास वो अचानक से बेहोश होकर गिर गए। 12 से 15 मिनट वो बेहोश रहे। डॉक्टर अवतार जी, इनकी टीम भी और सरकारी डॉक्टरों की टीम भी वहीं मौजूद थी स्टेज के पास। तो इन्होंने देखा कि उनकी हालत किस तरीके की थी। उसके बावजूद जब उन्होंने लगभग 1:30 पौने 2 के बीच में उनको होश आया, तो सबसे पहले उनका सवाल यही था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की तैयारियां कैसी चल रही हैं। तो डॉक्टर साहब ने भी खुद भी कहा कि आपकी तबीयत, आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप जुड़ पाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को हम सम्मान करते हैं हम, और सम्मान के तौर पे हम जुड़ेंगे। वो स्टेज के नीचे जहां गिर गए थे वहीं पे लेटे हुए थे, 2-3 कंबल ऊपर उनके डाल रखे थे, उन्होंने पूरे अपने कपड़े भी नहीं पहने थे, लेकिन ऊपर तक कंबल तक कवर करके गर्दन तक वो उसके बावजूद 12 से 15 मिनट तक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। अगर दोनों मोर्चों को और अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को, अगर इनके मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अगर सम्मान नहीं होता, तो शायद वे उस दिन ना जुड़ते। तो लगातार जो भी हम यहाँ पे बात रख रहे हैं, पूरे प्रॉपर तरीके से, सत्कार के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ और एक अपने संविधान के दायरे में रह के अपनी बातें रखी जा रही हैं और उसी तरीके से अपनी बात हम प्रॉपर रख रहे हैं लगातार। हमने तो सिर्फ इतना ही कहा है बार बार कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को भी ये दिशा निर्देश दे कि भाई जो संसद की कमेटी की रिपोर्ट है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जो इंटरिम रिपोर्ट है, जिन दोनों रिपोर्टों में एमएसपी गारंटी कानून के को बनाने की बात कही गई है, कृपा करके उनको भी केंद्र सरकार लागू करे। संसद से ऊपर तो हो नहीं गई केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार को भी ऐसे डायरेक्शन दिए जाए। यही बात अब तक बड़े सत्कार और सम्मान के साथ कही गई है। और एक कोई सवाल आपका और हो? वो कह रहे हैं कि जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, हमें उनकी मंशा पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, हम उन सारी चीज़ों पे अभी नहीं जाना चाहते। मैंने जैसा पहले कहा कि किस तरीके से क्या बयान दिया जा रहा है, क्या बयान नहीं दिया जा रहा है, क्या बात कही जा रही है, क्या फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को चिट्ठी लिखी गई है, वो सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। तो मंशा क्या है दोनों मोर्चों की या मंशा क्या नहीं है, वो पूरे देश के सामने मुझे लगता है क्लियर है। हमारी तो एक ही मंशा है कि चाहे संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो जो वादे हमसे पिछले लंबे समय से किए गए हैं, उन वायदों को पूरा करा दिया जाए। इसके अलावा हमारी और कोई मंशा नहीं है। अच्छा, अगर बात करी जाए तो ये धरना और कितना लंबा चलेगा? देखो, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है, हमारे तो हाथ में है नहीं कि धरना कितना लंबा चलेगा। केंद्र सरकार जब मांग पूरी कर देगी। जवाब नहीं मिलता है तो क्या होगा आगे का? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर मैनिफेस्टेशन की जाए, इमेजिनेशन की जाए, तो वो क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 38वां दिन है। एक इतने सीनियर लीडर ने अपनी जान दांव पे लगा दी है, उससे बड़ा कोई रणनीति या उससे बड़ा कोई फैसला हमें नहीं लगता कोई और हो सकता है। तो 4 जनवरी को सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना के अनुसार खनौरी किसान मोर्चे पे देश भर से लाखों किसानों की यहाँ पे गैदरिंग होगी, जिसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना जरूरी संदेश किसानों के नाम देंगे। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को ये महसूस भी होता है कि जिस तरीके से स्थितियां बनती जा रही हैं, जिस तरीके से सिचुएशन बनती जा रही है, किसी भी समय कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो इसीलिए 43-44 साल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जिस किसान समाज की सेवा करी है, उस सभी किसान समाज के, पूरे किसान समाज के वो दर्शन करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग एमएसपी गारंटी कानून बनवाना चाहते हैं, जो लोग सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, वो सारे साथी 4 तारीख को खनौरी किसान मोर्चे पर पहुंचे, क्योंकि 13 फरवरी से
शंभू, खनौरी और रतनपुरा मोर्चों पे एमएसपी गारंटी कानून बनवाने की लड़ाई चल रही है। इसीलिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के पक्ष में जो लोग खड़े हैं, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में जो लोग खड़े हैं, जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वो सभी आदमी 4 जनवरी को सुबह 10 बजे खनौरी किसान मोर्चे पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ये बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, किसी साथी को कोई कंफ्यूजन ना हो पूरे देश में। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपना जरूरी संदेश 4 जनवरी को खनौरी किसान मोर्चे से ही देंगे। अगर सारा दिन प्रशासन के साथ मीटिंग हुई, अब पंजाब सरकार ने दोबारा समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से हेल्थ ट्रीटमेंट को लेके। वो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा और समय दीजिए, हमारी बात चल रही है। तो हेल्थ ट्रीटमेंट करवाया जाएगा या जिस तरह से पिछली बार उन्होंने कहा था कि केंद्र बुलाए उसके बाद हेल्थ ट्रीटमेंट की ड्रिप जो है वो लगाई जा सकती है? देखिए, इस तरीके की कोई बात नहीं हुई कि ड्रिप लगाई जाएगी, ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, ड्रिप लगाने की किसी तरह की कोई चर्चा कहीं पे भी नहीं हुई। हमने कल भी निवेदन किया था कि कुछ जो पंजाब के बड़े सीनियर वरिष्ठ अधिकारी आए थे, उन्होंने कुछ बातें रखी थी, तो वो एक बार कंक्रीट फॉर्म में आ जाएं, उसके बाद दोनों फोरम हम अपना बिल्कुल ऑफिशियल स्टैंड क्लियर कर देंगे। एक डिस्कशन हुआ है, बातचीत हुई है, आंदोलन, ओवरऑल आंदोलन की स्थिति को लेके, डल्लेवाल साहब की हेल्थ के बारे में भी उसमें चर्चा हुई है, हमारी मांगों पे भी उस पर चर्चा हुई है। हमें लगता है कि एक बार कुछ कंक्रीट बन जाए, उसी के बाद हमें कोई स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना चाहिए। यही इसीलिए विनती है कि उस समय तक थोड़ा हम इंतजार करें। अगर सोमवार तक कोई हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं होगी जो पंजाब सरकार ने समय मांगा? देखिए, हमने ये बिल्कुल क्लियर आपको मैंने निवेदन किया कि किसी भी तरीके की जो अभी तक की बात है, कोई ड्रिप या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की कोई बातचीत अभी नहीं है। कुछ बातें हमारे आंदोलन को लेके, ओवरऑल मांगों को लेके माननीय अधिकारी गण की तरफ से आई थी, उस पे वो एक बार कंक्रीट फॉर्म में आ जाएंगी तो उसके बाद हम अपना निर्णय उस पे लेंगे। उनकी सेहत के बारे में बात की जाए तो कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, डॉक्टर साहब ने वो पूरी चीजें क्लियर कर दी हैं और कल वो पूरा दिन बोल भी नहीं पा रहे थे। पिछले 5-6 दिन से अगर थोड़ा ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो वो भी वोमिटिंग के तौर पे बाहर आ जाता है, तो उनकी स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही है। अगर आप उनके शरीर को देखेंगे तो पहले जो उनका शरीर था उसका मात्र 35% ही रह गया है, तो उनका वजन भी लगातार घटता जा रहा है, उनका बीपी भी लगातार बहुत कम हो रहा है। पहले जो कम फ्रीक्वेंटली बीपी इतना डाउन जाता था, अब वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डाउन जा रहा है, 75-76 के आसपास तक उनका बीपी पहुंच जा रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद सभी साथियों का। धन्यवाद, धन्यवाद। आगे आज की कोई भी इमरजेंसी को पीसी करनी पड़ी तो आपको जरूर सूचना दे देंगे। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभी साथियों का, सभी पत्रकार साथियों का जो पिछले 13 फरवरी से इस मोर्चे को जन जन तक पहुंचा रहे हो, सबका धन्यवाद।